سب سے پہلے پاکستان، میں ہوں ڈاکٹر نبیہہ علی خان، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں پورا سچ۔ ناظرین، اس وقت ہم بات کریں گے کہ غیر ملکی کرنسی جس کو آپ ڈالر کہتے ہیں، 65 سے زائد ممالک میں یہ کرنسی زر مبادلہ کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور پاکستان میں آئے دن ڈالر کی قیمت پرواز کرتی رہتی ہے۔ یہ ڈالر بڑھتا ہے، کم ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں یہ صرف بڑھتا ہے اور بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اس طرح سے جو اپنے ملک کی کرنسی ہوتی ہے اس کو نقصان بھی پہنچتا ہے اور اپنے ملک کی کرنسی ڈی ویلیو ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ملک میں جو معیشت کی صورتحال ہے وہ کلیش کر جاتی ہے۔ اور پھر اپنے ملک کی کرنسی میں آپ جب بھی اگر قرض دار ملک ہے جیسے کہ پاکستان ہے اور IMF کے قرضے تلے جو ہے وہ دبا ہوا ملک ہے، تو پھر جو قرض واپس کرنے ہوتے ہیں ان کا حجم بھی بڑھ جاتا ہے، ظاہر ہے اس میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی ڈالر بڑھتا ہے ویسے ہی ہر چیز بڑھ جاتی ہے۔ یہاں پہ پیٹرول، بجلی، ہر چیز کی قیمتیں روز بروز بڑھتی ہیں، جس طرح بڑھتی رہتی ہیں اور اسی طرح ڈالر بھی بڑھتا رہتا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ آج کل جو یہ صورتحال چل رہی ہے ڈالر کے بڑھنے کی، اتار چڑھاؤ جو اسٹاک ایکسچینج میں آپ دیکھتے آ رہے ہیں، یہ صورتحال پورے ملک پر اثر انداز ہوتی ہے، لیکن ان لوگوں پر اثر انداز نہیں ہوتی جنہوں نے ڈالر کو جمع کر کے رکھا ہوتا ہے۔ ان کا ڈالر مزید بڑھتا ہے بڑھتا ہے بڑھتا ہے اور بڑھتا ہے، اور جتنی قیمت ہوتی ہے وہ پھر اسی حساب سے جو ہے وہ اس میں قیمت وصول کرتے ہیں۔ اسی لیے پاکستان اس وقت جو ہے وہ کرائسس میں ہے، کیونکہ ڈالر کی قیمت یہاں پر کم نہیں ہو پا رہی۔ وجوہات کیا ہے، صورتحال کیا ہے، معاملات کیا ہے، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تیار کی ہے سلمان شاہ نے۔ دنیا کے 65 سے زائد ممالک میں زر مبادلہ کے لیے جو کرنسی استعمال ہوتی ہے وہ امریکی ڈالر ہے، اور بلا شبہ بین الاقوامی سطح پر دنیا بھر میں تجارتی کل حجم کا 60% سے زائد حصہ لین دین کے معاملات میں امریکی ڈالر کا مرہون منت ہے۔ گزشتہ ایک عرصے سے ترقی پذیر ممالک بالخصوص پاکستان میں امریکی ڈالر کی اونچی اڑان نے معیشت کو مخدوش کر کے رکھ دیا ہے۔ ڈالر کی قیمت میں روز بروز اضافے اور روپے کی قدر میں کمی کی وجہ سے جہاں پاکستان کی بین الاقوامی ادائیگیوں اور مالیاتی اداروں سے لیے گئے قرضوں کے حجم میں غیر یقینی حد تک اضافہ ہوتا جا رہا ہے، وہاں روپے کی قدر میں کمی کی وجہ سے کاروباری شعبوں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ماہر معاشیات کی رائے لے لی جائے تو کہا یہ جاتا ہے کہ جس ملک کی کرنسی ڈی ویلیو ہوتی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ زر مبادلہ جو کرنسی ہوتی ہے یعنی ڈالر، اس میں جب آپ خرید و فروخت کرتے ہیں تو پھر ملکوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ معیشت کو بیلنس کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اسٹریٹجیز اور پالیسیز کیا ہونی چاہیے، آج اس پر بات کریں گے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ ماہر معاشیات بھی ہمارے ساتھ آن کال ہوں گے، ان سے بھی پوچھیں گے کہ ملک کی معیشت جس دہانے پر کھڑی ہے وہاں سے اس کو سٹیبل کرنے میں ہمیں کتنا وقت ہے۔ اس سے پہلے بھی بہت سارے پروگرامز ہم نے اس پہ کیے اور آپ کو بتایا بھی کہ ملکی معیشت جو ہے وہ آنے والے وقت میں کہاں کھڑی ہوگی۔ اس حوالے سے ماہر معاشیات نے بڑے سخت قسم کے جو ہے وہ بیانات بھی دیے اور انہوں نے بتایا بھی، متنبہ بھی کیا کہ ملک پاکستان کی معیشت کو سٹیبل کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنی کرنسی کو سٹرونگ کرنا ہوگا، لیکن اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو جو چیزیں آپ ڈالر میں خریدتے ہیں ان کو کم کرنا ہوگا۔ اب مزید ماہر معاشیات اس مشکل دور میں کیا رائے دیتے ہیں یہ ہم آگے جانیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ہمارے رپورٹر سلمان شاہ۔ آئیے سلمان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں۔ جی سلمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبیہ دیکھیں، یہاں پہ بات آپ کر رہے ہیں ڈالر کی۔ اس وقت تقریباً 60 سے زائد ممالک ایسے ہیں کہ جو اپنا بزنس کرتے، اگر وہ لین دین کرتے ہیں تو وہ ڈالر کے اندر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پہ اگر بات کی جائے کہ جو ڈالر کی جو قدر ہے اس میں اضافہ کیسے ہوتا ہے، اس کی ہم سب سے پہلے وجوہات جانتے ہیں۔ اثرات پہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سیاسی عدم استحکام۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو سیاسی کشیدگی چل رہی ہے، نگران گورنمنٹ ہے پنجاب میں بھی اور فیڈرل کے اندر بھی، لیکن پھر بھی آپ یہ دیکھیں نبیہ، جو بزنس مین کمیونٹی ہوتی ہے نا، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس وقت آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ کرے تب ایک 5 سالہ گورنمنٹ جو کہ الیکٹ ہو کے آتی ہے ہمارے میرے ووٹوں سے، وہ موجود ہو۔ بالکل صحیح۔ اس کی وجہ سے بھی کچھ ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر آپ کے یہاں پہ کچھ ایسا مافیا نبیہ موجود ہے کہ جو مارکیٹ سے ڈالر لے کر اسے ذخیرہ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور انتظار کرتا ہے کہ جب ڈالر کی قیمت بڑھے تو اس کو فروخت کر دے، اور فروخت بھی نبیہ وہ سارا ڈالر نہیں کر دیتے، وہ کچھ مطلب ہزاروں کی تعداد میں ڈالر کو سیل کرتے ہیں اور باقی اگلے وقت کے لیے بچا کے رکھ لیتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں نبیہ، ایک دم بوم آتا ہے ڈالر کی قیمت کے اندر، 2 روپے 3 روپے۔ اب آپ یہ دیکھیں نبیہ کہ 3 سینچریاں
इंटर बैंक के अंदर जो डॉलर अपनी मुकम्मल कर चुका है जी। बाकी अगर हम ओपन मार्केट की बात करें नबिहा, तो वहां पे भी तकरीबन कोई 20 से 25 रुपए का फर्क है इंटर बैंक की निस्बत। बिल्कुल मनफी असरात पड़ रहे हैं ना मईशत पर। अच्छा अभी देखें नबिहा कि एक जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, अगर उसने पाकिस्तान में $10,000 भेजने हैं तो वो क्यों इंटर बैंक में भेजेगा? सही। जहां पे उसको पैसे कम मिल रहे हैं वो तो फिर ब्लैक मार्केट या हुंडी के जरिए पैसे भेजेगा ना। सही कह रहे हैं। जहां पे उसको फी डॉलर के ऊपर 25 से 30 रुपए इजाफी मिल रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी वजह होती है कि जब डॉलर आपका एक गवर्नमेंट के जो एक तरीका कार है उसके मुताबिक नहीं आता, हुंडी के जरिए आता है, तो डॉलर की कीमत बढ़ जाती है। सही। फिर क्या होता है नबिहा कि कई ऐसा हमारे यहाँ पे माफिया है कि जो कि डॉलर की गैर कानूनी स्मगलिंग करता है, इसको दूसरे ममालिक में लेके जाता है। ऐसे ही है। किसी भी तरीके से नबिहा हम देख लें, डॉलर को मार्केट से गायब कर देना, उसकी आप स्मगल कर लें, उसको आप जखीरा कर लें, मार्केट से वो गायब हो गया। बिल्कुल। अच्छा उसकी एक और वजह अभी जो आप डॉलर देख रहे हैं कि इसमें इसकी कीमत में एक बूम आया है। डॉलर जो है दिन ब दिन कभी 1 रुपया, 2 रुपया, 50 पैसे बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा। उसकी वजह नबिहा ये है कि चंद जो गवर्नमेंट की जानिब से जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो पाबंदी थी वो खत्म कर दी गई है। अब देखिए जिस बंदे ने नबिहा इंपोर्ट करनी है किसी भी चीज को तो वो डॉलर में पे करनी है, वो चीज डॉलर में पे करनी है। अच्छा जो एक्सपोर्ट्स हैं, एक्सपोर्ट्स के हवाले से हम बात कर लें, जो एक्सपोर्ट्स है ना नबिहा, वो जो चीज बनाई जाती है एक्सपोर्ट का जो खाम माल होता है वो हम दूसरे ममालिक से दरामद करते हैं, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे आता है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे बनाते हैं। खाम माल जो है वो एक शेप इख्तियार करता है किसी भी चीज की, किसी भी आप बात कर लें, आप मोबाइल सेल फोन की बात कर लें, आप बाइक की बात कर लें, आप कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लें, फिर उसको वो पूरी दुनिया के अंदर फरोख्त करते हैं। बिल्कुल ठीक। तो क्योंकि डॉलर के अंदर आपकी एक्सपोर्ट भी डॉलर पर रिलाई करती है, आपकी इंपोर्ट भी जो डॉलर पर रिलाई करती है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे जाके जो डॉलर है ये इसकी इंटरफेरेंस नबिया होती है। तो उस वजह से भी नबिया आप ये देखें कि जो डॉलर है उसकी कीमत में इजाफा होता है। जब तलब बढ़ जाती है नबिया किसी भी चीज की तो ऑटोमेटिकली आप ये देखें पाकिस्तान में चीज देखने में आती है। हम सिर्फ डॉलर की बात ना करें, आप फल की बात कर लें, आप सब्जियों की बात कर लें, आप मंगाते हैं बाहर से किसी भी चीज को हम मंगाते हैं तो जाहिर है डॉलर्स में पे करते हैं ना। जी बिल्कुल। वो तो डॉलर्स में हमसे जो है वो कीमत वसूल कर रहे हैं और हमारी अपनी करेंसी जो डी वैल्यू होती जा रही है, अगर पाकिस्तान भी अपनी करेंसी में लेन देन करता तो आपको नहीं लगता कि आज डॉलर की कीमत बढ़ती या कम होती, तो हमें उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना था। बताता हूँ अभी पाकिस्तान इस काबिल नहीं हुआ कि वो बस यही तो बात है, 76 साल हो गए बुढ़ा होने को आ गया लेकिन इस काबिल नहीं हुआ। यही तो हमारे लिए 60 से ज्यादा ममालिक जो है वो अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो डॉलर में करते हैं। हाँ। डॉलर वहां पर यूज होता है। अभी डॉलर का बड़ा सुरूख है, अभी हम डॉलर की जो सुरूख है, कर्जे हमारे बढ़ गए, डबल ट्रिपल हो गए, वो इसी वजह से हुए ना कि जब जाहिर बात है डॉलर बढ़ता है तो फायदा तो उनका होता है। अच्छा फिर एक और वजह होती है कि जो हमारे ज़रिए मुबादला के ज़खायर होते हैं जब उनमें कमी आती है तो उसकी वजह से भी जो डॉलर की कीमत है वो बढ़ती है और डॉलर की कीमत बढ़ने से जब आपके पास यूनिट्स ही नहीं होंगे लगाने के लिए, काम करने के मौके नहीं होंगे, लोगों के पास रोजगार नहीं होगा, आपकी मिलें बंद हो रही होंगी, जिस मुल्क में जो है वो बिजली के रेट्स हाई रेटेड हो जाएंगे, जहां पर आप अपनी मिलें नहीं चला पाएंगे, वहां डॉलर नहीं बढ़ेगा तो फिर क्या होगा? बिल्कुल ऐसा है। अच्छा इस पे हम थोड़ी बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान की मईशत पे जो पाकिस्तान की अवाम है इन पर मनफी असरात किस तरह मरतब होते हैं डॉलर का रेट बढ़ने से जी। अच्छा उसमें आप देखें नबिया कि जो भी चीजें हम उनको दरामद करते हैं अपने मुल्क में लेके आते हैं, तो अगर वो एक चीज $10 की थी और $10 की है, हम एग्जाम्पल लगाते हैं जी, और उसका रेट आज से 3-4 साल पहले 250 रुपए फी डॉलर। अच्छा अभी हमें ज्वाइन किया है आमिर अली ने, माहिर मौशियात हैं, एजाजी सफीर हैं सिल्क रूट पैक के, हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आमिर साहब बहुत शुक्रिया आपने ऑन कॉल हमें ज्वाइन किया। सूरत हाल ये है कि इस वक्त डॉलर की कीमतें जो है वो रोज बरोज बढ़ती चली जाती हैं। मुल्की मईशत की सूरत हाल भी आपके सामने है, डॉलर की बढ़ती हुई कीमत भी आपके सामने है, करना क्या है? सूरत हाल से सब हम वाकिफ हैं लेकिन अब हमारे पास लाए अमल क्या बचता है? देखिए डॉलर को अगर कंट्रोल करना है ना तो इट इज अ लॉन्ग टर्म प्लान। आप ये नहीं कह सकते कि डॉलर को आप विद इन अ फ्यू डेज कंट्रोल कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है। और उस लॉन्ग टर्म प्लान में जैसे फैसिलिटेशन काउंटर खोला गया है कि जो भी इन्वेस्टर पाकिस्तान में आना चाहता है उसको 1 विंडो में सारी फैसिलिटीज दी जाए। बिल्कुल ठीक। तो दिस इज वन स्टेप कि जिसकी वजह से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आना शुरू होगी। और ऑलरेडी आप ये देखिए कि कुछ कंट्रीज ने
इनिशियल एग्रीमेंट MOU साइन कर लिए, ठीक है, इसमें दुबई है, सऊदी अरेबिया है और चाइना है, ठीक है। और अगर ये आने वाले 2 साल में, जो कि जैसे कि एक्सपेक्टेशन है कि मोर देन $200 बिलियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान में इंजेक्ट की जाएगी, तो दिस विल टर्न द थिंग्स ऑन। आप ये नहीं कह सकते कि हम रातों रात कोई हमारे पास वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ अलादीन शराब। एग्जैक्टली। और इसके अलावा हमारी गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो डॉलर के गैप को मिनिमाइज करे, जो ओपन मार्केट का और जो कंट्रोल रेट है, अगर वो मिनिमाइज होता है तो वो लोग जो अभी भी हवाला और हुंडी के जरिए पैसे पाकिस्तान में ट्रांसफर कर रहे हैं जी, वो सब कन्वर्ट हो, वो पैसे लीगली भेजे। बिल्कुल सही है। हमें हवाला और हुंडी को डिस्करेज किया जाए, ताकि लोगों को इंसेंटिव दिया जाए, बल्कि यहाँ पे तो ये इंसेंटिव होना चाहिए कि अगर कोई लीगली पैसे ट्रांसफर कर रहा है, सही बात है, हम उसे ओपन मार्केट से भी ₹1 ऊपर रेट दें। हाँ बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजें तो तब होना जब इसको कोई करना चाहे। अगर कोई डॉलर की कीमत ही बढ़ाना चाहे और अपनी करेंसी को डीवैल्यू करना चाहे तो वहां कोई क्या करे? नहीं मैडम, मैं इस बात को कहता हूँ कि कोई भी हुकूमत ऐसी नहीं होती कि जो कि पाकिस्तान दुश्मन हो। हाँ, पॉलिसीज डिफर कर सकती हैं। मैं ये समझता हूँ इसहाक डार साहब ने बड़ी मेहनत से, एक बड़ा टाइम लगा, हम लोगों ने 1.5 साल जिस डिफॉल्टर के एज पे गुजारे, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की कौम को हमेशा ये अंदिया देता था कि हम कभी डिफॉल्ट नहीं करेंगे। सही। और अल्लाह ताला ने करम किया कि पाकिस्तान अपनी डिफॉल्ट साइड से ना के निकला है। आज पाकिस्तान के पास $15 बिलियन के रिजर्व हैं। ठीक है, बट हमें इन $15 बिलियन के रिजर्व को आने वाले 6 महीनों में एटलीस्ट $25 बिलियन तक लेके जाना है। सही। कैसे सर? बड़ी मुश्किल से हमारी फॉरेन रेमिटेंस इस मंथ में थोड़ी सी बढ़ी है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, हमेशा वजीर खजाना साहब तो यही कहते रहे, अब तो वो नहीं है जाहिर बात है, लेकिन वो तो ये कहते रहे मुल्क डिफॉल्ट नहीं करा, मुल्क को बचा लिया, अवाम को डिफॉल्ट कर दिया, ये क्या तरीकेकार था? अवाम तो यहाँ भूख से मर रही है सर, अवाम के पास तो इतना पैसा नहीं, मैशत तो आपकी डी वैल्यू हो गई, आपके पैसे की तो इतनी वैल्यू नहीं है कि आप पाकिस्तानी करेंसी में जो है वो खरीदो फरोख्त कर सके। आप तो डॉलर में पे करेंगे, तो आपका अपना रुपये जब डी वैल्यू होता है तो ऐसे मुल्कों के हवाले से जो है आपकी क्या राय है? माहिर मौशियात है, बेहतर बता सकते हैं। बहुत सारे मुल्क ऐसे थे कि जिनकी करेंसी बड़ी डिवैल्यूड थी, लेकिन उन्होंने उसको रिटेन किया। सही। हमें अपनी इकोनॉमी को रिटेन वाली पोजीशन में ले जाना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि इट नीड्स अ मेजर सर्जरी। सही। आप इसे कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। और जब भी हर गवर्नमेंट से मैं एक बात कहता हूँ कि आपकी फाइनेंशियल पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। हमारे यहाँ पे कितने थिंक टैंक है, मुझे तो नजर नहीं आते कि कितने फाइनेंशियल थिंक टैंक है जो ये बता सके कि 2030 में हमें ये टारगेट अचीव करना है, 2040 में हमें ये टारगेट अचीव करना है। और पॉलिटिकल पोलराइजेशन इतनी ज्यादा है कि एक गवर्नमेंट एक काम शुरू करती है, दूसरी गवर्नमेंट उसी काम को ब्रेक लगा देती है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल ठीक। तो जब तक वोटिंग और वोट्स के चक्कर से बाहर नहीं निकलेंगे, और छोटा सा एक ब्रिज होता है जिसको इफ्तिताह करने वो कभी नहीं निकलेंगे, वो कभी नहीं निकलेंगे। इसका आपके पास क्या हल है? क्योंकि सियासी मुहाज इस टाइम जिस तरह पाकिस्तान में जारी है, उस सिलसिले को, सिचुएशन को देख के इन्वेस्टमेंट तो पाकिस्तान में आने से रही, और इन्वेस्टमेंट जो हो चुकी थी वो भी हमने जो है वो उसको डीवैल्यू कर दिया। यहाँ पे प्रॉपर्टी प्राइस ये सब चीजें जो है, अब मैं आपको गारंटी देता हूँ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगी। अच्छा सर, कैसे आएगी? इस वक्त बड़े जल्द एक बहुत अच्छे स्टेज पे जाने वाला है। अच्छा। जहाँ पे ना सिर्फ गवादर एक्टिव होगा, बल्कि हमारी जो एग्रीकल्चर साइड है, अच्छा, जिसको ये कहा गया कि फौज ने ये जगह ले ली, फौज ने ये कर दिया, फौज ने ये कर दिया। अगर फौज ने आपको मॉडल फॉर्म बना के दिया है और उनका ख्याल है कि हम 10 से 12 अरब डॉलर का आपका जो फॉरेन रिजर्व है वो एडिबल ऑयल का बचा देंगे। ठीक है। आपका बजट डेफिसिट, देखिए बजट डेफिसिट है कितना, लेकिन हम उस पर काम करने के लिए तैयार नहीं है। हम इल्जाम तराशी से आगे नहीं निकलते। हम कहते अच्छा जी फौज ने ये कर लिया, फौज ने ये कर लिया। भाई फौज तो कहती है कि हमने तुम्हें मॉडल बना के दिया है। ठीक है, आप अल्लाह का वास्ता करो, काम बनाओ, इसको फॉलो करो। बिल्कुल ठीक है, वो सही कहते हैं, वो कहाँ गलत है। लेकिन बात यह है कि सर अब इस मॉडल को, इस स्ट्रैटेजी को, इस पॉलिसी को फॉलो करने वाले नहीं 76 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए। बुनियादी सहूलतों से महरूम रखा हमने पाकिस्तान को, मईशत हमने कहां से कहां पहुंचा दी। उसके बाद भी आपकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान में आएगी। सर ये कौन से सन में आएगी और कौन से साल में आएगी?
कि इंशाल्लाह जो मेरी स्पेकुलेशन है अप टू 2025 हमें एटलीस्ट $200 बिलियन पाकिस्तान की इकोनॉमी में एज अ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंजेक्ट होंगे विद इन 2 years, और उसके बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी का पहिया चलेगा। हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं किया था मैडम, मैं आपको ये बात गारंटी से कहता हूँ कि पिछली गवर्नमेंट ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं किया था। उन्होंने उसको पोर्टल में ले जाके उसकी ट्रांसपेरेंसी दिखा के फलां करके तमाम इंडस्ट्री जो ऑलरेडी पाकिस्तान में एग्जिस्ट कर रही थी, आपने उनके लिए सिर्फ ताले खरीदे। अच्छा, आपको किसी गवर्नमेंट को किसी इंडस्ट्री के लिए स्पेशल इनिशिएटिव देने पड़ते हैं। पूरी दुनिया में ऐसे होता है, उसको आप करप्शन नहीं कह सकते। सर, गवर्नमेंट लेवल पे तो जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हुए, जो पॉलिसीज मुरतब करनी चाहिए थी वो नहीं हुई। इंडिविजुअल आप अगर आवाम को कोई मशवरा देना चाहें या हम अपनी मईशत को स्टेबल करने के लिए पहला स्टेप क्या लेंगे, उस हवाले से बात करना चाहें तो मैं चाहूंगी कि मैं एक उम्मीद है। देखिए, मैंने अभी एक कराची में अटेंड किया एक एग्जीबिशन टेडाप की, ठीक है, जो कि फूड और फ्रोजन फूड पे थी। ठीक है, मेरा ख्याल है कि इट वाज सच अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान, जिसमें पूरी दुनिया से 436 डेलीगेशन आए और वो आके ना सिर्फ वो इंस्पायर थे बल्कि मैं इंस्पायर था कि पाकिस्तान में फूड एंड प्रिजर्व फूड एंड एग्रीकल्चर में ये काम भी हो रहा है। ये काम भी हो रहा है। हमें ऐसी एग्जीबिशन करवाते रहना चाहिए, हमें पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहिए। और मैं पाकिस्तानियों को अपील करूंगा कि खुदा के लिए कोशिश करें कि मेड इन पाकिस्तान खाए भी और पहने भी। और मैं पाकिस्तान को ये कहूंगा कि प्लीज ऐसी चीजें बनाएं कि जो पाकिस्तान में ना सिर्फ कंज्यूम हो बल्कि हम पाकिस्तान से बाहर उसे एक्सपोर्ट कर सके। एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन की तरफ है। ठीक है, आमिर अली साहब, बहुत शुक्रिया आपने ऑन कॉल हमें ज्वाइन किया। और इस वक्त में मैं एक चीज समझती हूँ, आपने एज अ माहिर मौशियात हमें बहुत जबरदस्त मशवरे दिए। मैं ये कहती हूँ कि जिस दिन हम ईमानदार हो जाएंगे, हमारी नीयतें साफ हो जाएंगी, उस दिन डॉलर तो क्या सारी कीमतें जो है वो स्टेबल हो जाएंगी और हमारे मुल्क का पहिया जो है वो चलना शुरू कर देगा। बेईमानी, बेरारवी और इसके अलावा जो अगला जुमला मैं बोलना नहीं चाहती, हमारे माशरे को नासूर की तरह खा चुके हैं। और यहाँ पर जो ये सारे मामलात हो रहे हैं, मिस बिहेव्स हो रहे हैं, यहाँ पर मिस कम्युनिकेशंस हैं, यहाँ पे मिसकंसेप्शंस हैं, ये क्यों हैं? ये इसीलिए है कि हमने कभी पॉलिसी पे काम ही नहीं किया, हमने स्ट्रैटेजी को कभी क्लियर ही नहीं किया। हमने करना है क्या, हमें पता ही कुछ नहीं है। जो जिस तरफ चलता है वो उस तरफ चल पड़ता है, जो चौका जिस तरफ लगता है, छक्का जिस तरफ लगता है, बाउंड्री लाइन इधर है, कोई चक्कर नहीं, जहां लगता है लगा दो चौका छक्का, कोई टेंशन नहीं। चौका छक्का लग गया तो बस आपकी बल्ले बल्ले है, वरना फिर आप बैठकर इंतजार करें कि आप कब जो है वो आउट होंगे। ये हो रहा है। पाकिस्तान एक क्रिकेट का मैदान बन चुका है और रोजमर्रा की जिंदगी में जो है वो मैचेस हो रहे हैं। जिस मुल्क में बिजली के बिल भरने के लिए जो है वो लोगों को अपने जेवरात और कीमती अशिया बेचकर ये बिल जमा करवाने पड़ रहे हो, जिस मुल्क में बिजली के बिल जमा करवाने पे घरों में लड़ाई हो जाए और गोलियां चल जाएं, अभी की ब्रेकिंग न्यूज है मेरे पास ये। और यकीन करें कि अभी मुझे ये जानकर बड़ी हैरत हो रही है कि ये बिजली के बिल में जहां बहन भाई और भाई भाई जो है वो आपस में एक दूसरे का गिरबान चाक कर दें, उस मुल्क की मईशत के हवाले से स्ट्रेटेजी और पॉलिसीज को रोते रहे बैठे हुए कि यहाँ पर जो है वो कुछ बेहतर होगा। अल्लाह करे जी बेहतर हो जाए, अल्लाह कोई करम हम पर कर दे, मेरी तो दुआ है। क्या कहेंगे सलमान आप? जी बिल्कुल भैया, जैसे आपने जिक्र किया कि इस वक्त आप देखें कि जो बिजली जो है पाकिस्तान में जो बड़ी महंगी हो चुकी है, अब यूनिट उसका देखें, अभी गुज़िश्ता रोज भी उसमें इजाफा हुआ है, गुज़िश्ता हफ्ते। तो यहाँ पे नबीहा जब इस तरह का एक माहौल पैदा कर दिया जाएगा लड़ाई झगड़े वाला, तो किस तरह आप अपनी मईशत को बेहतर कर सकेंगे जी? जब एक गरीब आदमी, देखें हमारे मुल्क के अंदर जो तरक्की, जिस तबके ने आपके मुल्क को तरक्की की डगर पर चलाना होता है है मिडिल क्लास तबका। हाँ, तरक्की जो लेकर आते हैं। जो आप ये देखें कि आपके जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, आपके कारखाने हैं, आपकी मिलें हैं, लोअर मिडिल क्लास को अपर मिडिल क्लास में लाएं, अपर मिडिल क्लास है वो काम करता है और पाकिस्तान की तरक्की में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। सही बात। लेकिन इस तरह के जब हालात बना दिए जाएंगे नबिया के, जो मिडिल क्लास तबका है वो भी अपनी रोटी के लाले पड़ जाएंगे, तो किस तरह आप ये सोचेंगे कि मईशत बेहतर हो सकती है? सही बात है। अच्छा, मैं बात नबिया कर रहा था, मईशत से ही मैं अपने इस बात को आगे चलाऊंगा। जो डॉलर है, डॉलर के जो महंगा होने के जो हमारी मईशत पे असरात होते हैं वो बड़े मनफी असरात हैं। आप ये देखें नबिया कि हमारे मुल्क में कोई शायद ही ऐसी चीज हो जो कि आपके यहाँ पे प्रोड्यूस होती हो, बनती हो।
अब आप ये देखें नबिया कि आपका पेट्रोल है, आपकी गाड़ियां हैं, आपके मोबाइल्स हैं, आपका खुर्दनी तेल है, आपकी अब तो गंदम भी आपको नबिया बाहर के मुल्क से दूसरे मुल्क से मंगवानी पड़ती है। तो जब नबिया डॉलर का रेट जो है उसमें दिन ब दिन इजाफा होगा, तो एक चीज जिस तरह मैं नबिया अभी आमिर अली साहब को लाइन पर हमने जब लिया उससे पहले मैं जिक्र कर रहा था, साहब कह रहे हैं मेड इन पाकिस्तान पहने, मेड इन पाकिस्तान खाएं। जी मैं आपको उसी तरफ लेकर जा रहा हूँ। नहीं आप उस तरफ ना लेकर जाएं आवाम को, मेड इन पाकिस्तान में खाया जाएगा। देखें जब यहाँ पे दो चीजें देखें, यहाँ पे नहीं दो अलग अलग चीजें, हम जो चीज बाहर के मुल्क से मंगवा रहे हैं वो हम डॉलर में मंगवा रहे हैं। बड़ी खूबसूरत बात ध्यान में आई है कि मेड इन पाकिस्तान जो है वो हमारे वो धक्के हैं जो हमारी आवाम खा रही है। मेड इन पाकिस्तान वो गर्द है, वो यहाँ पर उड़ने वाला जो है वो गलीज धुआं है जिसकी वजह से आलूदगी फैल रही है, ये सब मेड इन पाकिस्तान है जो कहीं और आपको नहीं मिलेगा पाकिस्तान में। मैं यहाँ पे दो चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा अपने नाज़रीन से। देखें आपने जो जिक्र किया मेड इन पाकिस्तान का, वो आमिर अली साहब ने कहा कि मेड इन पाकिस्तान पहने, उसकी वजह यह है कि आपके पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रीज तो है नहीं। आपके पाकिस्तान में अगर एक बंदा एक किसी भी सेक्टर में पैसे इन्वेस्ट करता है तो सारे उसके पीछे लग जाते हैं। सर मेड इन पाकिस्तान पहनना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मेड इन पाकिस्तान जब आप पहन के कहीं बैठने लगते हैं ना तो वो मेड इन पाकिस्तान जो है वो सारी सिलाइयां खुल जाती हैं। ये बड़ा ये नबिया अच्छा एक चीज और मैं बताता हूँ, अब यही मेड इन पाकिस्तान जब दूसरे मुल्क में जाता है तो वहां पर सिलाइयां नहीं खुलती उसकी, भाई यही तो बात है, क्वालिटी होती है। सर मैंने कहा ना कि जिस दिन हमारे ईमान पुख्ता हो जाएंगे, जिस दिन हमारी नीयतें साफ हो जाएंगी, उस दिन मेड इन पाकिस्तान की धूमें मच जाएंगी, उस दिन मेड इन पाकिस्तान ही होगा सब जगह। मैंने भैया जिक्र कर रहा था कि देखिए अब जो आपका रियल एस्टेट का सेक्टर है ना, अब तमाम पाकिस्तान उसके पीछे लगे हुए हैं। अब तो एफबीआर ने कुछ टैक्स लगा दी तो उसकी वजह से रियल एस्टेट में थोड़ी सी कमी आई है। अब वो क्या करते हैं कि जी एक मकान खरीदा वो दूसरे को सेल कर दिया, उस इंसान ने तीसरे को सेल कर दिया। मतलब कोई इंडस्ट्री लगाने की तरफ ध्यान नहीं है, कोई मतलब आप यहाँ पे कोई हैंडमेड चीजों का कोई कारखाना लगा लें, आप कोई स्टिचिंग का लगा लें किसी भी चीज का, मतलब कोई आप कैसे लगा लें? आपकी बिजली इतनी महंगी हो चुकी है, आप कैसे चलाएंगे? जो छोटे मोटे कारखाने थे वो तो बेचारे बंद हो गए, जहाँ पे बेचारी खवातीन बच्चे से काम करवाते थे। हम कितना चाइल्ड लेबर के खिलाफ प्रोग्राम करते हैं कि ये कानूनन जुर्म है, तो वो बच्चे भी बेरोजगार हो गए, वो माएँ भी, बहनें, बेटियां सब जो बेचारियां काम करती थी और जो नई सफाइयां लोगों के घरों में करना चाहती हैं, अच्छा साफ सुथरा काम करना चाहती हैं, वो सब इस टाइम जो वो घर में बैठे हैं, किसी जो है वो इन्होंने को निकाला, बंद हो गई सारी मिलें। क्या आपके ना देखिए हिकमत मिली नहीं है। हम वोट तो दे देते हैं, हमारे वोटर सियासतदान आ जाते हैं और वोट मांगने से पहले वो आपके पांव को हाथ लगा रहे होते हैं, और जब वो यहाँ पे इलेक्ट होके आ जाते हैं तो फिर वो आपका फोन सुना या आपसे बात करना पसंद नहीं करते। मैं पहले ये सोचती थी कि आपके और मेरे वोट की वैल्यू है, लेकिन मुझे समझ आई वक्त के साथ साथ कि आपके मेरे वोट की वैल्यू नहीं है, आपकी मेरी सोच की वैल्यू नहीं है। वैल्यू सिर्फ उस चीज की है कि जिसने आना है बस उसी ने आना है, बात खत्म कर दें। तो उसकी वजह ये है कि आप इससे आगे बात ही नहीं कर सकते ना। आपके वोट की वैल्यू तो तब हो ना जब आप अपनी मनपसंद जो है वो शख्सियत को लाना चाह रहे हो और आप लेकर आ भी जाएं। अच्छा वो आ भी जाएं तो ऐवान इतने बड़े बड़े हैं, आप कभी गवर्नर हाउस जाएं, ऐसा महल बना हुआ है, आप वहां पे गुम हो जाएंगे, आपको बाहर का पता ही कोई नहीं चलेगा। आप सीएम हाउस चले जाएं, आप प्राइम मिनिस्टर हाउस चले जाएं, ऐसे ऐसे जो है वो महलात बने हुए हैं कि जहां पर जाके लोग एक गरीब आदमी का दुख दर्द तो भूल जाता है, अपना भी भूल जाता है। आप कभी इवेंट भी अटेंड करने जाए ना तो आपको याद ही नहीं रहता कि आप कौन है, आप कौन सी गाड़ी में आए हैं, या क्या हुआ है। इस वजह से वहां पर रहने बैठने और वहां पर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने वाले लोग जो हैं वो गरीब आदमी की तकलीफ को नहीं समझ सकते जब तक इनको पंखों में बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ना करवाई जाएं, जब तक इनको नहीं एसी क्यों, एसी नहीं होने चाहिए ना। आम गरीब आवाम जो है वो एसी में थोड़ी बैठ रही है। लेंगे आप मुझे बताएं ना जो सियासतदान। सर फिर ही तो पाकिस्तान बदलेगा, फिर ही तो पाकिस्तान की मैशत स्टेबल होगी, फिर ही तो डॉलर नीचे आएगा, फिर ही तो काम होंगे यहाँ पे, फिर ही तो मिलें चलेंगी और फिर ही तो मेड इन पाकिस्तान की धूम मचेगी। गवर्नमेंट आती है उसकी तरजीहात हमें देखना होगा, उसकी तरजीहात क्या है। देखिए अभी तरजीहात है पैसे इकट्ठे करना, आप इलेक्शन से पहले आवाम को तंग करना, आप मुख्तलिफ जो पार्टीज होती हैं सियासी, आप उनके दावे देख लें और जब वो इलेक्ट होके आ जाती हैं तब आप उनकी अपना जो कारनामे देख लें तो आपको एक वाज़ेह फर्क नजर आएगा। पता सलमान हमारे पास जो है ना वो अभी ब्रेक का वक्त हो गया है, मैं सिर्फ एक जुमले पर जो है वो ब्रेक लूंगी। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां पे इलेक्शन से पहले किए जाने वाले वादे और शादी से पहले किए जाने वाले वादे कभी वफा नहीं होते,
हवाई फायरिंग होती है, जितनी मर्जी कर दो। तो सर ये सारे हालात और मामलात है पाकिस्तान के, लेकिन अल्लाह करे कि कुछ ठीक हो जाए। और जिस तरीके से हमें माहिर मौशियात आमिर अली साहब ने जो है वो ये यकीन दहानी करवाई है कि आने वाले वक्त में इन्वेस्टमेंट आएगी पाकिस्तान में, तो मैं भी पूरी उम्मीद हूं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान स्टेबल करेगा, लेकिन जब अवाम को होश आएगा तब। ब्रेक के बाद एक और अहम मौजू, मेरे साथ रहिएगा।